Are you ready for the class? Okay. So friends, let's start the class without wasting time. So first of all, good morning once again. I repeat, please do not write anything on my screen. I think someone is writing something on my screen. Yes, thank you. So I believe that you all are good and we are doing practice. Okay, because without practice, you won't be able to increase your Excel proficiency, right? So, students, if you remember, in the last 2 days, we have covered the basic Excel part, and I have shared some important commands which are available on, the interface in like in home menu, like in file menu, view menu. Okay, so these commands were useful to increase the speed. Okay, अगर आप अपनी speed increase करना चाहते हैं और time save करना चाहते हैं, so you can utilize those commands. Let's start the session with the topic sum if. Yes, yesterday we were at this particular point और हमने sum if को utilize करना सीखा था in the Excel. If you remember students, last day my last topic was related to this particular database. हम लोग इस database पे काम कर रहे थे, which was a large data set of 51,000 entries in each column. Okay, मैंने आपको बताया था कि हम sum if फॉर्मूले की मदद से टोटल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं of any of our variable on the basis of some criteria, right? And in this example the criteria was month. तो हमने सीखा मंथ वाइज टोटल सेल्स निकालना, मंथ वाइज टोटल प्रॉफिट कंप्यूट करना, मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी कंप्यूट करना, right, from the given data set where the data is in a different sheet. I repeat, हमारा डाटा एक अलग शीट में था और हमारा आउटपुट एक अलग शीट में था, राइट? तो कल हमने शीट रेफरेंसिंग की मदद से ये सब किया था. In the same manner, if you want to compute count, I repeat, you can also compute the count in the same manner. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना है count if. Okay, so just type count if, double click, and students, in count users need to specify two things. count करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए. पहला काउंट करना किसको है और दूसरा उसका क्राइटेरिया क्या है, राइट? सो फ्रेंड्स, हियर the if you are if you don't know that what are the requirement of a formula, so you can do one thing. After typing a formula on the formula bar, there is a fx button. यहाँ देखिए ये एक बटन होता है fx. You can open this. आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. And this dialog box is really helpful because it gives instruction that what is the requirement. Suppose the first thing is written here range, यहाँ लिखा हुआ आता है नीचे, इसमें आपको क्या select करना है, right? So here you get instructions also, right? So it is really important. If you are a beginner, so it is my advice to you, always utilize this particular box. तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, रेंज. वी नीड टू स्पेसिफाई द रेंज. और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेंज इज व्हाट, रेंज इज द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम व्हिच यू वांट टू काउंट, राइट, एंड नन ब्लैंक सेल. तो रेंज वो रेंज है जिस पर आप क्या करना चाह रहे हैं, काउंटिंग करना चाह रहे हैं. रेफरेंस, राइट? यस्टरडे आल्सो वी यूटिलाइज दिस. हमने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था. सो वी वुड लाइक टू नो how many transactions were there in each month. Okay, so I am going to select my column of month from the previous sheet and I am going to freeze it. I repeat, I am going to freeze it. Okay, so just a second. Yes, because I'm using this box, so whatever I'm doing I need to specify here only. मुझे यहाँ पर ही करना होगा. Otherwise, you can also write on formula bar directly. It is not very tough, right? Initially it seems like tough, but
अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी. So I'm going to write once again, write count if, double click, and now select, just a second. Now select range in the previous sheet, range of month, because मुझे counting किसके according करनी है, month wise करना है. So month is my criteria, right? And the list of month which is available in the last column of my data sheet is the range of month. Okay, तो इसको select करने के बाद आपको इसे freeze करना है using function plus F4 button. Use function plus F4 button to freeze this. Okay, now what is next? Next is the criteria. So select January, and do not forget to put a dollar sign before B. B से पहले आपको एक डॉलर साइन लगाना है ताकि फॉर्मूला ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहे जब हम इसे आगे ड्रैग करें. So just press enter. So look here. These were the transactions of January month. Out of 51,000, the total transactions in January, it was 4,365. Okay, the transactions in Feb, this were 3,877. तो आपने देखा हर मंथ का मुझे ट्रांजेक्शन पता लग गया, तो इससे मैं बता सकता हूँ कि कौन से मंथ में ज्यादा सेल्स हुआ था, राइट? काउंट किसका ज्यादा था, दिस आई कैन कंप्यूट यूजिंग count if command. Okay, so in this manner you can apply count if on the basis of a particular criteria, right? Students, similarly, if you wish to compute average, आपको अगर इसी तरह average चाहिए, so prepare a same table, same structure of the table, and now apply average formula. अब आपको average formula लगाना है, बिल्कुल सेम मैनर में काम करता है ये भी. Just type average if. Okay, now listen, in average you need to specify three things. काउंट में आपको सिर्फ दो चीजें ही स्पेसिफाई करना था, यहाँ एवरेज इसमें आपको 3 इनपुट्स देना होगा. व्हाट इज द 3 इनपुट्स? नंबर 1, रेंज ऑफ क्राइटेरिया, मंथ का लिस्ट. सेकंड, क्राइटेरिया, दैट इज द मंथ. ओके, थर्ड, द रेंज ऑफ एवरेज. एवरेज किसका निकालना है? तो अभी यहाँ पर हम सेल्स का निकालने वाले. So average range will be the data of sales. So students, let's apply this thing. Click on that previous sheet and select your last column for the criteria range, because month wise computation करना है मुझे. So freeze this using function plus F4 button. It's a shortcut key. Okay, comma. Next is criteria. Criteria is January. Put a dollar sign before B. B से पहले एक डॉलर लगाना होगा आपको to freeze the column. Comma, average range. Average range means you need to select column of sales, because here you want to compute average sales. तो मुझे इस शीट में जाना पड़ेगा और सेल्स का जो डेटा है starting from H2, right? Select this. Control Shift Down arrow. Select करने का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था आपको लास्ट टाइम? Control Shift Down arrow. So function plus F4, freeze कर दिया हमने इसको भी, and now press enter. So look here, on an average in January month the average sales was 154.94, right? Just double click and look here. So this is the average sales of each month, right? और यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा एवरेज सेल्स हुआ है, right? If you want to know which one is the highest value, so you can apply conditional formatting here. यहाँ पर आप होम मेन्यू पर आकर conditional formatting पे जाइए, and here you can highlight the top n values. Top n values का क्या मतलब है? अगर आपको सिर्फ top 2 चाहिए तो type 2 है and enter. So देखिए यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि in month of April there was highest average sales, whereas in June this was the second highest average sales. तो ये 2 महीने सबसे अच्छे गए थे सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. So in this manner you can analyze
sales, average sales from a large data set using average if command. In the same manner, students, you can once again apply average for the total profit. I repeat, type average if, रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज यानी क्राइटेरिया का रेंज, क्राइटेरिया क्या है, मंथ, तो मंथ के कॉलम में जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मंथ को सेलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मंथ, कॉमा कॉमा सेकंड इज क्राइटेरिया, कौन से मंथ का निकालना है, तो हमने जनवरी को सेलेक्ट किया एंड पुट अ डॉलर साइन, पुट अ डॉलर साइन, जस्ट हाँ, पुट अ डॉलर साइन बिफोर बी, कॉलम के नाम के आगे डॉलर लगाना है, कॉमा, लास्ट इज एवरेज रेंज. तो अब हमें किसका एवरेज निकालना है, प्रॉफिट का. गो बैक इन योर शीट एंड सेलेक्ट द कॉलम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट सेल, K2. K2 is the first cell. Control shift down arrow और इसको फ्रीज करना है, right, bracket close, press enter. So look here, this is the average profit of January. Double click, ये आपके सामने आ गया, average sales of all, average profit of all the months, right? So friends, in this manner you can utilize average if command. Now we are going to understand another command which is sum if और sum if as. अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज अलग कैसे हैं उन फॉर्मूलाज से. So friends, यहाँ पर जो नई चीज दिख रही है फॉर्मूले में वो क्या है, that is special S. S is there. So these formulas are applicable when you have multiple criterias. Now what do you mean by multiple criterias? Look here, in my data set there are so many variables available. और अगर मुझे यहाँ पे सेल्स निकालना हो मंथ वाइज, अगर मुझे सेल्स निकालना हो मंथ वाइज, तो मंथ इज माय वन क्राइटेरिया. सपोज आई वांट टू कंप्यूट say total sales of each month in various product categories. I repeat, in various product categories. Look here, in this column every product belongs to a category, auto and accessories, okay, then there is fashion, there is home and furniture, right, then there is electronics, right? So there are some categories of the product. तो अब मैं क्या चाहता हूँ, now I would like to compute total sales but not only month wise but for the product category wise also. मुझे product category wise भी sales निकालना है, right? तो अब यहाँ पे दो दो क्राइटेरियाज हैं. तो मुझे लगता है आप लोग अपने माइंड में इसका एक पिक्चर बना पा रहे होंगे कि अगर मुझे हर क्राइटेरिया का सेल्स चाहिए तो इस टेबल का साइज बढ़ाना पड़ेगा. कैसे? इन द फर्स्ट पार्ट it is going to display sales of auto and accessories. Then in the second part it is going to display sales of the electronics month wise. In the third part again home furniture and fashion. So let me tell you students, now I am going to share a very important shortcut tool to you जिससे आपको ये इतना लंबा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. I am going to delete it, इसकी जरूरत नहीं है. What is the shortcut way? Students, I can fix a second criteria in this cell. ये जो मैंने yellow cell highlight किया है, I can fix the second criteria name of product category into this cell automatically. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ये चारों जो नाम दिख रहे हैं आपको ये by default इस yellow cell के अंदर आ जाएं अपने आप in a drop down. Okay, और जैसे ही मैं first को select करूँगा, here I'll get output of auto and accessories. If I'll select the second, I'll get output of second. If I'll select the third one, तो मुझे third का मिलता जाएगा. So in this manner, I can apply formula of sum on the basis of two criteria. So let's fix our second criteria first. First criteria तो हो गया month. Second criteria क्या है? Product category. तो इस highlighted cell में इन चारों को डालने के लिए as a drop down list, you need to utilize data validation command. I repeat, you need to utilize data validation command. So click on data, right? There is a data validation command. Where it is? Look here. In data menu, there is a
data validation. So using this command, you can fix this list here in this small box. How? ध्यान से देखिए, follow my instructions. Friends, select your cell, click on data validation, and here in drop down, in this drop down, there's a list command. So I want to create a list of these 4 entries here in this particular box. तो मुझे यहाँ से list को select करना होगा. Then I need to select a source. What is the source? This is the source. I need to select this list जो मैंने right hand side में बना रखा है. Okay, तो आप अपनी सारी product categories को side में note कर लीजिए, type कर लीजिए and select that list. Press OK. जैसे ही मैंने OK press किया तो इससे क्या नजर आ रहा है मुझे? A drop down arrow is coming here now. Are you observing? A new drop down arrow is there in this cell. Now click on this drop down and look here the magic. At first, auto and accessories is written. So अगर मैं इसको select करूँगा, my cell is going to fill automatically by auto and accessories. Electronics को select करता हूँ, electronics अपने आप आ रहा है. I need not to type this criteria. ये अपने आप आ रहा है. Similarly, home furniture. Similarly, fashion. Right? Students, during the session, if you have any query, you can write in chat box. Okay, and at the end of the session, we are going to address your queries. Right? So, in this box, after inserting a list of my second criteria, now I'm going to apply formulas for sum. ओके अब हम सम के लिए फॉर्मूला बनाते हैं. तो आपने देखा अभी तक क्या किया हमने. अभी तक हमने फर्स्ट क्राइटेरिया को लिस्ट किया, दैट इज मंथ, और सेकंड क्राइटेरिया को लिस्ट किया, दैट इज प्रोडक्ट कैटेगरी. दैट्स इट. अभी तक हमने टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाया. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला लेंथ में थोड़ा बड़ा है बट इट इज रियली वेरी यूजफुल. ओके, सो फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. टाइप इज इक्वल टू and type sum if s. I repeat, type sum if s. So this s is utilized when you have more than one criteria. 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी क्राइटेरियाज हो आप उसके बेसिस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं. sum if s. Okay, now what is the first requirement? Students, अब आपको सबसे पहले sum if s में क्या सेलेक्ट करना है? sum range. I repeat, इसका फॉर्मूला सम इफ के फॉर्मूले से थोड़ा सा रिवर्स है, उल्टा है. सम इफ में हम क्या करते थे पहले? सम इफ में हम सेलेक्ट करते थे क्राइटेरिया की रेंज, 10 क्राइटेरिया देन सम रेंज. जबकि सम इफ एस में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट सम रेंज, देन क्राइटेरिया 1 रेंज, देन क्राइटेरिया 2 रेंज, देन क्राइटेरिया 3 रेंज, देन क्राइटेरिया. ये इस तरह चलेगा. तो सारे क्राइटेरियाज बाद में आएंगे और पहले आपको डिसाइड करना है कि किसका टोटल निकालना है. ओके, नाउ just a second, there is a query in chat box. Let me address. Did you put the $sign in the data validation or it automatically frees the cell address? Automatically. I have not typed any $sign to create a list using data validation. Okay, in data validation function there is an inbuilt programming. It considers only referencing based list. इसका मतलब क्या है? वहां डॉलर बाय डिफॉल्ट है, मैंने नहीं लगाया. ओके, डॉलर इज ऑटोमेटिकली देयर. ओके, सो सम इफ एस. ओके, सम इफ एस, then select sum range. Now sum range means सेल्स का कॉलम आपको सेलेक्ट करना है. So go back in the data sheet and search where is your column of sales. This is my column of sales. Press Ctrl Shift down arrow and select your entire column. After this, freeze your sum range. Press a comma. I hope इतना सबको समझ में आया. Step number 1, select your sum range. टोटल किसका करना है? तो यहाँ मुझे टोटल करना था सेल्स का, इसलिए मैंने सेल्स का डेटा सेलेक्ट किया सबसे पहले. Now next, second thing, क्राइटेरिया रेंज. क्राइटेरिया 1 रेंज. 1 क्राइटेरिया क्या है? मंथ. तो मुझे शीट में जाना है और मंथ का कॉलम सेलेक्ट करना है. सो फ्रेंड्स, हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट
month list and freeze it. इसको भी freeze करना है, comma. Now what next? Next is the criteria. Criteria range तो हमने ले लिया, अब criteria लेना है, यानी कौन से month का आंसर चाहिए. तो हमको आंसर चाहिए जनवरी का, तो मैंने जनवरी को सेलेक्ट किया. And put a dollar sign before L. L क्या है? Column name, right? तो मुझे एक डॉलर लगाना पड़ेगा कॉलम के नाम से पहले यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर. नाउ पुट अ कॉमा. ठीक है, फॉर्मूला अभी ओवर नहीं हुआ. नाउ सेकंड थिंग, सेकंड इज गॉट criteria to range. What is the second criteria? Product category. So click on data set and search out where is the list of product category. It is in column E. Okay, sorry, F. So select the F column, control shift down arrow. This is your criteria to range. और इसको भी freeze करना है, ध्यान रहे. Press a comma. What next? Next is second criteria. आपने रेंज तो सेलेक्ट कर लिया, अब क्राइटेरिया क्या है, किस कैटेगरी का आंसर चाहिए. हमें आंसर चाहिए उसका जो इस येलो सेल में लिखा हुआ है. सो प्लीज सेलेक्ट योर येलो सेल. और एक बात, इस येलो सेल को कंप्लीटली फ्रीज करना है, याद रहे. यानी येलो सेल हमारा फिक्स है. ओके, तो हमने इसको कंप्लीट फ्रीज कर दिया फंक्शन प्लस F4 दबा के, राइट. यानी कि इस येलो सेल में जो कुछ भी चेंज होगा दैट विल बी माय सेकंड क्राइटेरिया. ओके, एंड क्लोज योर ब्रैकेट. आई होप यू आर गेटिंग द फॉर्मूला. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना था? सम रेंज, किसका टोटल निकालना है. नंबर 2 मंथ का रेंज. नंबर 3 मंथ का नाम, मंथ नेम. नंबर 4 प्रोडक्ट कैटेगरी रेंज. Number 5 product category name. Okay, so in this manner I have applied a formula, and now look here the magic. Enter. Without any error I am getting the answer. और ये मुझे बता रहा है कि 4,39,830 सेल्स है किसका? जनवरी मंथ का फैशन कैटेगरी के लिए. डबल क्लिक. लुक हियर द मैजिक. देखा आपने? दिस इज द सेल्स ऑफ फैशन कैटेगरी. अब अगर इस ड्रॉप डाउन में आकर मैं ऑटो एंड एसेसरीज करूंगा, look here the beauty. I am getting answers for auto and accessories. In drop down, click on home and furniture, you are getting answer. Select fashion, you are getting answer. आपको सिर्फ इस ड्रॉप डाउन से कैटेगरीज को चेंज करते जाना है और आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होगा विदाउट एनी डिफिकल्टी, राइट. सो स्टूडेंट्स, let's apply to profit also. Same formula profit में भी apply करते हैं. So right now I have just copied my formula in the profit. और आपको पता है मैं क्या चेंज करने वाला हूँ? As a smart person, I am just going to change column name of profit. What is the column name of profit? Profit का नाम, profit किस column में? G column में. Sorry, profit is available in K column. तो मैं smartly formula bar पे जाके यहां से H को रिप्लेस कर दूंगा किससे? K से. Only in some range, that's it. इसके अलावा और कुछ भी नहीं, right? So replace your H by K. Replace your H by K in the formula bar and press enter. Have you seen it? I think आपको 20 सेकंड से भी कम टाइम में फॉर्मूला लगाना आ गया होगा प्रॉफिट के लिए. सिर्फ आपको नेम चेंज करना था एंड डबल क्लिक. प्रॉफिट आपके सामने. दिस इज मंथ वाइज प्रॉफिट फॉर फैशन कैटेगरी. क्लिक ऑटो एसेसरीज. आप देखिए दोनों कॉलम चेंज हो रहे हैं अपने आप. इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कॉलम चेंज हो रहे हैं. होम एंड फर्नीचर यू आर गेटिंग न्यू रिजल्ट्स. फैशन न्यू रिजल्ट्स. सो आई बिलीव दैट यू एक्वायर्ड दिस इंफॉर्मेशन. आपको समझ में आया है ये कि किस तरह से हम सम इफ अप्लाई करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही काउंट इफ लगता है, बिल्कुल ऐसे ही एवरेज इफ लगता है. ऑल थ्री फॉर्मूलाज आर सेम, राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन काउंट इफ एंड एवरेज इफ बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, राइट. आई बिलीव कि अब आप उसे कर पाएंगे इजीली. सिर्फ सम की जगह काउंट लिखना है, सम की जगह एवरेज लिखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें. बट यू नो स्टूडेंट्स,
आई एम नॉट हैप्पी विद दिस फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला लगाना और सही आंसर लाना मुझे लगता है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये प्रैक्टिस के बाद ही आता है, हर कोई इतना आसानी से नहीं कर सकता। सो आई एम गोइंग टू शेयर नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इन एक्सेल वेयर यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है और आपको बिना फॉर्मूले के आंसर मिल जाएगा। एंड इसको हम बोलते हैं पाइवोट, राइट? You can also pronounce as pivot or pivot. Pivot is the facility which converts your large data set into tables. डेटा को टेबल्स में प्रेजेंट करने का काम है पाइवोट टेबल्स का। और उसकी मदद से आप ये दोनों ही टेबल जो आपने अभी भी बनाई है, चाहे मंथ वाइज हो चाहे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हो, आई कैन गारंटी 30 सेकेंड्स में आप बना सकते हो विदाउट, सिर्फ क्लिक करना है, दैट्स इट। Illustrate the functioning of pivot to you. Please focus on your screen. Students, first of all, you need to select your data which you want to convert into pivot. जिसका भी pivot बनाना है उस data को select करना चाहिए. Okay, and it is my advice to you, always convert your data into table before applying pivot. Pivot बनाने से पहले आपको अपने data को टेबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस टू यू। ये आपको आगे जाके फायदा देगा। अगर आप डेटा में मॉडिफिकेशन करेंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा आपका आंसर, राइट? राइट नाउ इन माय ऑन माय स्क्रीन माय डेटा इज नॉट इनटू टेबल। तो पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिना टेबल में कन्वर्ट किए पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, सो सेलेक्ट योर डेटा रेंज फर्स्ट। हाउ? पुट योर कर्सर इन द फर्स्ट सेल A1, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। So in this manner you will be able to select all entries of this particular sheet. तो 51,000 एंट्रीज रो में थी और 20 कॉलम्स थे, यानी ये 10 लाख से भी ऊपर गया शायद, राइट? मतलब इट इज इन लैक्स। तो ये पूरा लाख एंट्रीज को आपने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, राइट? यूजिंग टू कमांड्स, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। आपको इंसर्ट पे जाना है and here in the left hand side there is a facility of pivot table. ये है वो मैजिकल कमांड जिससे आप अपने लार्ज डेटा सेट को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आई रिपीट, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से सुनिए। किसी भी डेटा सेट का जिसका कि आप टेबल बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले उसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ऐसा करने से आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड आफ्टर दिस क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट मेन्यू, एंड हियर वी हैव अ पाइवोट टेबल, राइट? जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। यस, so using this pivot you can apply, right? चलिए मैं इसको अब अप्लाई करके दिखाता हूँ। आई बिलीव आपने स्टेप्स रिकॉर्ड किए हैं। स्टेप नंबर 1, पुट योर कर्सर इन द फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन क्लिक ऑन पाइवोट। जब आप पाइवोट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक बॉक्स आएगा, क्रिएट पाइवोट टेबल। सबसे पहले क्या करना है आपको? हियर यू नीड टू स्पेसिफाई योर डेटा रेंज। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है डेटा रेंज। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। देख रहे हो आप, डॉटेड डांसिंग लाइन इज देयर अक्रॉस माय डेटा सेट, डेटा रेंज। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इनपुट है कि मुझे किस डेटा पर पाइवोट बनाना है। नाउ सेकंड पॉइंट, यू नीड टू स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू प्लेस योर पाइवोट टेबल। कहां पर बनाना है? इन द सेम शीट और इन अ डिफरेंट शीट, both the options are available. So friends, I am going to create in a new worksheet first of all. ये by default यहाँ पर है और मैं अभी नई शीट में इसको बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये करंट शीट मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा है और मुझे इसे स्क्रॉल करना पड़ता है अगेन एंड अगेन कुछ भी देखने के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट एन इन न्यू वर्कशीट, राइट? तो इस बॉक्स में क्या करना है? स्पेसिफाई योर डेटा रेंज एंड स्पेसिफाई योर आउटपुट रेंज। कहाँ पर आउटपुट चाहिए? प्रेस ओके। If you will press OK, automatically
दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू शीट इन योर एक्सेल। आपने देखा आपकी एक्टिव शीट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक नया शीट आ जाएगा, इसको हम पाइवोट शीट कहते हैं, राइट। और यहाँ पर एक ऐसा टेबल आएगा जो आपको बता रहा है कि पाइवोट टेबल इधर बनेगा, आउटपुट यहाँ पे आएगा। और आउटपुट आएगा कैसे? इन चारों चीजों की मदद से। लुक हियर, इन राइट हैंड साइड देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स व्हिच वर देयर इन दैट फाइल। और यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, पहला है फिल्टर, पहला है, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रोज और चौथा है वैल्यू। तो आपको करना क्या है? आपको बस करना इतना सा है कि यहाँ से जिस भी चीज का टेबल बनाना है, सेलेक्ट एंड ड्रॉप इनटू बॉक्सेस, उसे सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इन राइट हैंड साइड देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स। उस टेबल में जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स क्रिएट टेबल फॉर दी मंथ वाइज सेल्स। तो मंथ वाले कॉलम को उठाइए और सबसे पहले रोज में इंसर्ट कीजिए। जरा देखना क्या होगा इससे। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने मंथ को उठा के रोज में ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ मंथ्स हियर। यहाँ ऑटोमेटिकली मुझे मंथ्स मिल रहे हैं। एंड लुक हियर, देयर इज नो रिपीटेशन, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है। Jan, Feb, March, April, all entries are unique. There is no repetition. Okay. इसके बाद क्या करना है? आपको क्या चाहिए था? Month wise sales. So now select your sales column into values. I repeat, जिस भी वेरिएबल पर आपको कोई भी मैथमेटिक्स लगानी है उसको इस समेशन वैल्यूज वाले बॉक्स में सेलेक्ट कीजिए। कुछ देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर? आउटपुट आ गया, टेबल इज रेडी। आपने देखा within a second you are able to create a table using pivot, and this is a table for month wise sales. अगर आप में से कोई प्रॉफिट के लिए भी बनाना चाहता है, it's very easy. Select your profit column, profit variable, and drop into summation values. Look here on the screen. क्या देखा आपने? प्रॉफिट का भी कॉलम बन के तैयार है और मंथ वाइज कैलकुलेशंस भी हो गई है और हेडिंग्स भी इसने अपने आप लिख दी है, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली इफ यू वांट फॉर द क्वांटिटी एज वेल, आपको क्वांटिटी के लिए भी चाहिए, नो इशू, आई एम रेडी फॉर द क्वांटिटी एज वेल। सेलेक्ट योर क्वांटिटी एंड ड्रॉप इनटू समेशन वैल्यूज। लुक हियर, द क्वांटिटी इज आल्सो रेडी। देखा आपने, यानी सम फॉर्मूले से भी ज्यादा जल्दी पाइवोट आपको आंसर देता है और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। यू नीड नॉट टू टाइप एनी फॉर्मूला ऑन फॉर्मूला बार, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइवोट टेबल, राइट। नाउ एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अभी अभी हमने क्या बनाया था थोड़ी देर पहले? 2 डायमेंशनल टेबल, राइट। A table with 2 criteria. And what was the second criteria? Second criteria was product categories. ठीक है, तो आइए जरा आप सेकंड क्राइटेरिया इंसर्ट करते हैं। इसमें कैसे करेंगे? प्रोडक्ट कैटेगरी को पकड़ो एंड ड्रॉप इनटू फिल्टर्स। ध्यान दो, प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। मैं वापस से करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्टेड एंड ड्रॉप इनटू फिल्टर। जैसे ही इसको फिल्टर में ड्रॉप करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फिल्टर लग गया है। जस्ट अबव टू द टेबल देयर इज अ फिल्टर, ड्रॉप डाउन बन गया अपने आप ही। जो अभी हम थोड़ी देर पहले डेटा वैलिडेशन से बना रहे थे, दैट ड्रॉप डाउन इज रेडी हियर ऑटोमेटिकली। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको। क्लिक ऑन ऑटो एंड एसेसरीज, प्रेस ओके। अभी आपकी स्क्रीन पे टेबल रेडी है ऑटो एंड एसेसरीज का। इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। फैशन का चाहिए, दिस इज फॉर फैशन। इफ यू वांट अ टेबल फॉर होम एंड फर्नीचर, दिस इज फॉर होम एंड फर्नीचर। देखा आपने, यू आर एबल टू क्रिएट अ 2 criteria बेस्ड टेबल अगेन इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में ही तैयार है ये भी। एक और चीज बताता हूँ आपको। सपोज आपको कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसमें 2 criteria का टोटल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इफ यू वांट टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन टुगेदर, आई रिपीट, if you want to display output of electronics and fashion together, then that is also possible.
हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे देखिए एक और चेक बॉक्स है, क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। ये क्या बोल रहा है? सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स चाहिए तो यहाँ पे टिक कीजिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पर टिक कर दिया मैंने, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, दिस इज द टेबल फॉर कंबाइंड सेल्स फॉर फैशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज द पावर ऑफ पाइवोट टेबल। आई होप आप इसका टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेस देन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये काम करता है। ओके, और भी आपको इसकी कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। फ्रेंड्स, suppose after getting this table, my boss says give me the list of all those transactions which were in January month. I repeat, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट चाहिए जो कि जनवरी मंथ के थे और फैशन से बिलोंग करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? there is a question in chat box, sir, why you put product category in first filter, not in row? Yes, look here, if I'll put this filter in rows, so let's observe your screen, what kind of table you are getting here. अगर मैंने इसको रोज में यूज किया तो आप देख रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर ही बदल गया है। और अब मुझे क्या पता लग रहा है, नाउ आई एम गेटिंग you know just a second, by mistake I have applied filter for a category। हाँ, तो प्रोडक्ट कैटेगरी को अगर रोज में सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मुझे क्या दिखा रहा है, फैशन की आउटपुट दिखा रहा है ऑफ ईच मंथ। और अगर इस ड्रॉप डाउन से मैं बाकी कैटेगरीज को भी सेलेक्ट कर लूँ तो अब जरा टेबल देखो आप कैसा आ रहा है। कुछ देखा आपने? इन ईच मंथ यू आर गेटिंग मंथ वाइज टोटल, यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज टोटल। तो ये जो टेबल है ये थोड़ा सा साइज में बढ़ गया है, और इसको मुझे लगता है जब जरूरत हो तभी इसको बनाना चाहिए। अगर आप हर महीने की डिटेल इस तरह चाह रहे हो तभी आपको ऐसा करना चाहिए। जबकि इसको फिल्टर में सेलेक्ट करने से देखो क्या दिख रहा है, एक एकदम शॉर्ट एंड स्वीट टेबल, राइट? और एट अ टाइम इट इज गोइंग टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ वन फिल्टर, बट सेकेंड type of table, this is going to display output of all four categories at a time। जैसी जरूरत है उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, राइट? मुझे ये ज्यादा सुटेबल नजर आ रहा है अभी के लिए, राइट? क्योंकि ये मुझे यूजफुल चीजें दे रहा है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था, सपोज टेबल इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरा मैनेजर मुझे बोलता है, मेरा बॉस मुझे बोलता है कि अभिनीत, give me the list of all those transactions which were in January month and belongs to fashion category। मुझे उन ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट दो जो फैशन कैटेगरी के थे और जो जनवरी मंथ में हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले फिल्टर में जाकर क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू सेलेक्ट फैशन, राइट? उसके बाद आपको पता है जनवरी मंथ की लिस्ट फैशन वाली कैसे आएगी? ये दिख रहा है आपको, ये सेल जहां पर जनवरी के सामने टोटल सेल्स लिखा हुआ है फैशन इंडस्ट्री के लिए, इस सेल पर आकर डबल क्लिक करना है, बस ओनली डबल क्लिक, आंसर आपके सामने होगा। ध्यान से देखिए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस, double click, that's it। look here on my screen, I have a list of only January based transactions। देखिए कस्टमाइज फिल्टर लग गया अपने आप ही, और यहाँ इस लिस्ट में सिर्फ जनवरी के ट्रांजेक्शन्स हैं। देख रहे हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ नहीं है। और एक बात, these transactions belongs to only फैशन कैटेगरी। और ये चीज आप कहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ देखिए, फैशन। So list is ready in a fraction of second। This is a beauty of pivot table, right? So students, और एक बात, आउटपुट मेरा अलग शीट में है, ये आउटपुट मेरा अलग शीट में आ रहा है, तो मैं इजीली ये फॉरवर्ड कर सकता हूँ अपने बॉस को, सर ये लीजिए आपका आंसर।
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दिस मैनर once again, if you will apply filter for two categories, fashion and home furniture, और अगर आप यहाँ से अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो, डबल क्लिक ऑन अप्रैल, so the table is ready, and this table is not only for fashion, this is also for, look here, fashion के जस्ट बाद यहाँ पर home and furniture का डेटा है. After the fashion there is a data of home and furniture, right? So here you are getting a customized table for two product categories for a particular month, January, oh sorry, April, right? This is the beauty of Pivot. Okay, so friends, I hope you are enjoying this. Let me tell you, the movie is not over here. Pivot की जो strength है सिर्फ इतनी सी नहीं है, right? Pivot में आप बहुत सारी चीजें fraction of seconds में कर सकते हैं. कैसे? Look here. मेरा मैनेजर मुझे बोलता है, suppose my manager gives instruction, Abhinit, I don't want sum, I don't want total, I want average sales, average profit, average quantity sold in each month by the company, right? मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, सम नहीं चाहिए. इट्स वेरी इजी, कोई बात नहीं. क्या करें इसके लिए? राइट क्लिक ऑन द कॉलम. आप राइट क्लिक कीजिए कॉलम पर जिसके लिए आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं. क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग. आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड ऑफ द एक्सेल, वैल्यू फील्ड सेटिंग. ओके, तो आप हमेशा याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है. क्लिक ऑन इट. एक बॉक्स आएगा आपके सामने. ये जो बॉक्स है ये इनबिल्ट फंक्शंस के लिए है, यानी पाइवोट के अंदर काफी प्रोग्रामिंग हो रखी है एंड देयर आर इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट फॉर्मूलाज. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्लिक. लुक हियर, इफ यू विल क्लिक ऑन एवरेज, अगर आपने एवरेज पे क्लिक किया और ओके प्रेस किया, आपकी स्क्रीन पर एवरेज रेडी है. देखिए, दिस इज द एवरेज सेल्स ऑफ ईच मंथ ऑफ दिस प्रोडक्ट कैटेगरी. आपने देखा कितना फास्ट है ये कंप्यूटेशन करने में. यहां से जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज दिस इज फॉर फैशन, तो फॉर फैशन प्रोडक्ट कैटेगरी यू आर गेटिंग एवरेज सेल्स. ओके, और ये एवरेज मुझे दिख रहा है कि काफी सारे डेसिमल पॉइंट्स तक है, तो राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए. ये देखिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द वैल्यू. So in this manner you can compute average. और देखिए, similarly if you don't want average, कुछ और चाहिए, right click, value field setting. आपको जानना है हर महीने में मैक्सिमम सेल्स कितने का हुआ, तो select maximum, MAX, and press OK. So this is the maximum sales in each month. Right click once again. If you want to get value of count, कितने transactions हुए, these are the number of transaction of each month for the fashion category. Okay, so in this manner students, you can apply statistics automatically in the Excel. There is one more way, एक और तरीका है इसका. वो क्या है? In the value column, at this drop down, in these two drop downs you can change the same setting. Same चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं. क्लिक हियर, क्लिक ऑन इट, और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग का बटन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको चाहिए. इफ यू वांट सम, ओनली सम. स्टूडेंट्स, डू यू नो, व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग अ न्यू थिंग, माय टाइटल इज ऑटोमेटिकली इट इज गेटिंग चेंज. देख रहे हैं आप, जब मैंने सम किया तो ऊपर सम लिखा आ रहा है, जब एवरेज किया तो एवरेज लिखा हुआ आ रहा है, और जब मैंने काउंट किया था तब यहाँ काउंट लिखा हुआ आ रहा था. तो ये टाइटल भी अपने आप ही चेंज कर देता है. ओके, बाय मिस्टेक मुझसे डबल क्लिक हो गया. So this is about the automatic inbuilt functions statistics. आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे. Students, if you would like to convert this data into percentage, for comparison, percentage is better as compared to the whole numbers, real numbers, right? तो percentage में कैसे convert करें? Very easy. Once again, right click कीजिए,
वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए और इसी बॉक्स में एक और मैजिकल सेटिंग अवेलेबल है. व्हाट इज दैट मैजिकल सेटिंग? शो वैल्यूज एज. अभी जो आप कर रहे थे वो क्या था? समराइज वैल्यू बाय. So you can utilize a statistical function to summarize a value, to give a summary of the context. But show values as is a function to convert your data into different manner. जैसे मैंने क्लिक किया show values as, from the no calculation मैं यहाँ पे select करता हूँ percentage of column total. Press OK. Look here. I am getting output in the percentage. I can easily observe that in January month there was 8.44% of sales of total sales का 8.44 जनवरी से आया है. In April the proportion was 8.12%. In May the proportion is 8.43%. This is percentage. एक बार फिर से राइट क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं, शो वैल्यूज एज पे चलते हैं और अब हम यहाँ से कुछ और लेते हैं, लाइक percentage of. If you will type percentage of, तो इससे क्या होगा आपको पता है? Using this you can compute average with respect to a particular month. जैसे किसी को जानना है कि जनवरी मंथ के कंपैरिजन में कितना सेल्स हुआ है इन ऑल अदर मंथ्स, तो मुझे यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करना है इन द बेस आइटम और बेस फील्ड में क्या सेलेक्ट करना है? मंथ, क्योंकि मुझे मंथ वाइज सेल्स, मंथ वाइज परसेंटेज चाहिए एज कंपेयर टू जनवरी मंथ. प्रेस ओके. लुक हियर, देखा आपने क्या मीनिंग निकल रहा है इस डेटा का? ये मुझे बता रहा है कि जनवरी से ज्यादा सेल्स दिसंबर में हुआ था. 102%. जनवरी के कंपैरिजन में अगर हम जनवरी को 100 एज्यूम कर लें तो इससे भी ज्यादा सेल्स दिसंबर में हुआ था, इससे भी ज्यादा सेल्स अक्टूबर में हुआ था, इससे भी ज्यादा सेल्स जुलाई में हुआ था, और इससे कम सेल्स कब हुआ? फैब के अंदर कम हुआ. कितना कम? 10% का डाउनफॉल था. अप्रैल 4%, मई 0.5%. तो आपने देखा यू आर एबल टू कंप्यूट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मंथ यूजिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू. एक बार फिर से आपको उसी पे ले चलता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यूज एज, और एक और आपको नई चीज दिखाता हूँ. यहाँ पर एक और चीज है, दैट इज रनिंग टोटल, परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल. आइए जरा देखें ये क्या है, परसेंटेज रनिंग टोटल. प्रेस ओके. इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? कोई बताएगा मुझे ये क्या चीज है? व्हाट आर दीज वैल्यूज? Is there anyone in class who would like to unmute and would like to explain the interpretation of the answer? क्या आंसर निकल रहा है ये? You can also write in chat box. Yes, cumulative. Very true. बिल्कुल सही बताया आपने. You are absolutely right. Here you are getting cumulative sum in percentage. तो इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि 57% सेल्स हमने जुलाई तक कंप्लीट कर लिया था, और ये जो रिमेनिंग सेल हुआ है इट इज इन दी लास्ट 5 मंथ. 91% सेल्स हम नवंबर तक अचीव कर चुके थे, राइट? सो क्यूमुलेटिव सम यू कैन कंप्यूट फ्रॉम हियर, राइट? स्टूडेंट्स, suppose you want to do some calculation with this sales only. एक बार फिर से समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ. सपोज आपको प्रॉफिट डिस्प्ले करना है टेबल पर, परसेंटेज डिस्प्ले करना है और रैंक्स भी डिस्प्ले करना है, तो ये कैसे होगा एक साथ? तो स्टूडेंट्स, यस दिस इज पॉसिबल. सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कॉलम्स क्रिएट करने पड़ेंगे. कैसे? सेलेक्ट कीजिए प्रॉफिट के लिस्ट, प्रॉफिट को फ्रॉम द लिस्ट एंड ड्रॉप इनटू वैल्यूज. ओके, एक बार ड्रॉप किया, एक कॉलम आ गया. वंस अगेन ड्रॉप, एक बार और ड्रॉप कीजिए. लुक हियर, यू आर गेटिंग अनदर कॉलम. वंस अगेन ड्रॉप, अनदर कॉलम. जितनी भी बार आप ड्रॉप करते जाएंगे उतनी बार नए कॉलम बनते जाएंगे.
फॉर द सेम थिंग। अच्छा, सेम चीज को 3 बार क्यों लिखा है? मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है because of I would like to convert data of second column in percentage using show values as percentage of grand total or column total. This is the percentage. In third column, I would like to show values as rank. तो यहाँ पर मैं एक rank का option लूंगा. Now you have two options: rank smallest to largest, rank largest to smallest. What I believe, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बेटर रहेगा. ये देखिए, इसने रैंक भी निकाल दिया. और आप यहाँ से इनका लेबलिंग भी चेंज कर सकते हैं. अगर आपको कोई टाइटल देना है, यू कैन गिव टाइटल. हाउ? एक तरीका तो है राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग, एंड हियर वी आर गेटिंग ऑप्शन फॉर दी कस्टमाइज नेम. आप यहाँ से नेम लिख सकते हैं, जो भी टाइटल आपको देना है. This is one method. Second method is just click on that cell, फॉर्मूला बार पे आइए और आपकी मर्जी का कुछ भी टाइटल यहाँ रखिए. रैंक्स लिख देता हूं मैं, मंथ वाइज रैंक. ओके, ये क्या है? परसेंटेज है, तो यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज सेल्स मंथ वाइज परसेंटेज सेल्स. ओके, इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि प्रॉपर दिखने लग जाए. एंड व्हाट वाज दैट? दिस वाज द सम ओनली. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर यू कैन यूज पाइवोट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ये इस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं. ठीक है. yes, repetition, yes, that is possible. Okay, I request everyone, please give your attention to it, because it's a 1 hour session only, and we have to, I always try to teach lot of things to you so that you can learn many things. So let me repeat once again. It's very easy. This time I am going to show you something different. कुछ नया सिखाते हैं आपको. Students, now I want to create a table. Let's start from scratch. Fresh से start करते हैं, zero से. So after clicking on insert pivot, I will be at this point. एक ये sheet आ जाएगा. इस sheet में क्या करना है मुझे? In this sheet, I would like to get date wise sales. मुझे date wise sales चाहिए. तो date को select करेंगे कहाँ पर? Rows में. आपने देखा क्या हुआ? जैसे ही मैंने date को rows में select किया, ऑटोमेटिक मंथ्स आ रहे हैं यहाँ पे. और एक और चीज आपको बताता हूँ. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी इन द कॉलम. कुछ नोटिस कर रहे हैं आप? प्रोडक्ट कैटेगरी को इस बार मैंने कॉलम्स में डाला. तो अगर आपने ऐसा किया, प्रोडक्ट कैटेगरी को कॉलम के अंदर आपने पुट किया, तो आप देख रहे हैं टेबल, ये बाय वेरिएट टेबल बन जाएगा. बाय वेरिएट टेबल यानी मंथ वाइज information you will receive here in this comparative table. So it's a type of matrix. इसको हम एक तरह से मैट्रिक्स कहते हैं. ये क्या है? मैट्रिक्स है, जो कॉलम वाइज भी इंफॉर्मेशन देगा, रो वाइज भी इंफॉर्मेशन देगा. So students, here now what you want sales, data of sales. Select your sale and drop it to summation values. Look here, the table is ready for all 4 categories, for all months. You are getting data of sales along with the grand total, right? और इसकी एक खास बात है, वो क्या है? If you will right click in the first column, तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग का ऑप्शन और आता है. इस ग्रुपिंग के ऑप्शन में आपको टाइम को ग्रुप करने का ऑप्शन आता है. जैसे आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो क्वार्टर वाइज सेल्स देखना चाहते हैं, मंथ वाइज नहीं. तो क्लिक ऑन क्वार्टर, प्रेस ओके. ये देखिए, आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्वार्टर वाइज सेल्स में कन्वर्ट हो गया है. So this is the picture of quarter wise sales: quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. But this grouping facility is applicable only for a numerical or date based variable, not for all.
राइट। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में फर्स्ट कॉलम में मैंने डेट लिया है, इसलिए ग्रुपिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। सपोज आप क्वार्टर्स के अंदर मंथ्स को भी देखना चाहते हैं, यस यू कैन। लुक हियर, देखा आपने, फर्स्ट क्वार्टर जैन फेब मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट। आपको क्वार्टर वाइज डिस्प्ले किया जा रहा है सेल्स, क्वार्टर और मंथ दोनों है इसके अंदर। इसी तरह से अगर मल्टीपल ईयर्स का डेटा होता तो यहाँ ईयर वाइज ग्रुपिंग भी हो सकती है, ईयर। ओके, जैसे अभी अगर मैं ओनली ईयर करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक लाइन मिलेगा, बिकॉज द डेटा इज ऑफ ओनली 2015, इट इज नॉट फॉर एनी अदर ईयर, ये सिर्फ एक ही साल का डेटा है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग ओनली वन कॉलम, वन रो। वंस अगेन ग्रुप एंड क्लिक ऑन मंथ, तो ये मंथ वाइज सेल्स आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे जैसे मुझे मुझे स्टेट वाइज डेटा चाहिए, तो मैंने स्टेट का फिल्टर लगा दिया यहाँ पे, राइट। मुझे मैंने क्या किया, स्टेट का फिल्टर लगा दिया। तो क्लिक ऑन स्टेट और मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा देखना है। लेट मी टेल यू, दिस इज द डेटा ऑफ मल्टी नेशंस, राइट, इट्स अ मल्टीनेशनल डेटा। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा चाहिए। सो इन दिस लिस्ट वी हैव इंडिया, so I think the data of our country is not there. Okay, let's select any of the country. जैसे यहाँ से हांगकांग सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स क्लिक ऑन हांगकांग। सो लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हांगकांग। ये हांगकांग का मंथ वाइज डेटा है फैशन होम फर्नीचर के लिए। तो आपने देखा, आप 3 क्राइटेरिया बेस्ड टेबल भी बना पा रहे हैं। ओके, सो जस्ट ड्रॉप एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप्स भी बना सकते हैं चीजों के। जैसे अगर सेल्स को सेलेक्ट करके मैं रोज में डालता हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है इधर, या आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ लेबल्स ऑफ सेल्स। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी ग्रुपिंग भी हो सकती है। कैसे, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि groups are starting from 33, you can start group from 33 and you can end at 250 and you can give an interval of 10. अगर आपको 20 का इंटरवल चाहिए, that is also possible. If you want an interval of 50, that is also possible. Look here, देखा आपने कुछ, your tables has been converted into groups, group wise आप डेटा भी देख सकते हैं। so these are the sales level। अगर सेम चीज को समेशन वैल्यूज में डाल दूंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है, काउंट। ये मुझे बता रहा है कि किस 33,000 से 52,000 वाले टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए, 1249। तो यहाँ से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किस अमाउंट के होते हैं। दिस एनालिसिस आई कैन डू यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल। So I hope you are getting new things in the pivot। आपको pivot की सारी नई चीजें समझ में आ रही होंगी। Pivot is a very important, very useful tool in Excel, right? जो हमको बहुत क्रिएटिव चीजें देता है और हिडन ट्रुथ सामने लाता है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ चार्ट फॉर पाइवोट टेबल। आप पाइवोट टेबल के लिए चार्ट भी बना सकते हो और उसको हम बोलते हैं पाइवोट चार्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और वो भी कब, वो भी इन अकॉर्डिंग टू द शिपिंग मोड। तो ये मेरा डेटा है, राइट।
इसका चार्ट बनाना है तो क्या करना है, सेलेक्ट, क्लिक ऑन एनी प्लेस ऑफ दिस चार्ट, राइट, एंड click on design, sorry, click on analyze, and here you'll get option for pivot chart. आप देखें यहाँ पे pivot chart का ऑप्शन आपको मिलेगा. Okay, so by clicking on pivot chart you can create a beautiful creative chart. तो आपको चार्ट डिस्प्ले करने के लिए मैं वापस पहले वाली टेबल ही बना लेता हूँ. मंथ इन द रोज, sales and profit, sales and profit in columns. So students, let's create a chart for this. I don't want count, I want sum. Yes. तो देखिए इसका चार्ट कैसे बनेगा, क्लिक कीजिए कहीं पर भी, उसके बाद पाइवोट चार्ट पे जाइए, क्लिक ऑन पाइवोट चार्ट, और ये आपको बता रहा है कौन कौन से चार्ट पॉसिबल हैं इस तरह के डेटा पर, राइट. सो लाइन चार्ट, यस, इट्स अ टाइम सीरीज डेटा. जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल का जो डेटा है इट्स अ टाइम सीरीज डेटा. उसको हम पाइवोट चार्ट, इसको हम लाइन चार्ट की तरह बनाएंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा. दिस इज द ट्रेंड ऑफ सेल्स ऑफ ऑल मंथ्स. You know what is the beauty or USP of pivot chart? Pivot chart का USP ये है कि यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है. स्टूडेंट्स, पाइवोट चार्ट में यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है. जो भी चीज आप डिस्प्ले करना चाहते हो आप सिर्फ वही डिस्प्ले कर सकते हो. जैसे सपोज लेट्स क्लिक ऑन मंथ, I want to display data of only Jan, April, August. Click. Look here. Your chart has been shifted only for 3 months. ये सिर्फ 3 महीने का ही चार्ट दिखा रहा है. Let me create a bar chart here because bar chart is, it looks better. So let's click here, design. Just a second. Excel is hanging now. So click on pivot and create a 3-dimensional bar chart. Yes, this looks better. तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ जनवरी, फैब, मार्च का प्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ तो आई कैन सेलेक्ट दिस और मेरा चार्ट बन जाएगा अपने आप. किसके लिए? जैन, फेब, मार्च के लिए. ओके. इफ यू डोंट वांट टू डिस्प्ले प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट डिस्प्ले नहीं करना है, क्लिक ऑन दिस सम ऑफ प्रॉफिट एंड डिलीट इट. इसको डिलीट कर दीजिए या राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फील्ड. सो लुक हियर, नाउ चार्ट डिस्प्लेज ओनली सेल्स. आपने देखा टेबल में दोनों चीजें थी बट चार्ट से गायब हो गई, राइट. सो दिस इज लिंक्ड चार्ट, ये उससे लिंक्ड है. सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन I have demonstrated utility of pivot to you. मैंने आपको sum if as, count if as, average if as को लगाना सिखाया और उसके साथ ही हमने pivot chart को भी यूटिलाइज करना सीखा, राइट. और मैंने आपको दिखाया कि ये कितना पावरफुल है और कितना जल्दी आपको क्विकली रिजल्ट्स देता है. Okay, so practice this with any of the data set which you have. Okay, you can download dummy data sets from the internet पर already काफी सारे data sets हैं. Okay, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं. So this is from my side. If you have any query, so please write in chat box. If you have any query, then please write in chat box. I would like to address the queries. Okay, thank you. If you have no doubt.